और मंत्र स्वावलंबन आत्मनिर्भरता के बारे में। तो आज का हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनिल थॉमस। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो हो सकता है आपको सुनने में समझने में गूढ़ लगे, लेकिन वास्तव में भारत उस विषय पर भी आत्मनिर्भर हो रहा है। बात करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी की, किस तरह से साइबर सुरक्षा प्रदान की जाए, किस तरह से आपकी जो सूचनाएं हैं, जो आपकी निजता है, उसको बरकरार रखा जाए। आज इस विषय पर बात करेंगे। Well, privacy, like eating and breathing, is one of life's basic requirements. When I'm talking about this particular concept, what it means, with India carving a niche for itself in the IT sector, dependence on technology is also increasing. However, there are two things that set India aside from the players in the big leagues like the United States and China, and that is the design and density of our country. With Indians using the internet for all their needs ranging from shopping to banking, studying to storing data, cyber crimes have also increased in proportion to usage. What are the cyber security challenges faced by India? With strengthened cyber security defense, will India's future and India's businesses be able to become more competitive on the global level and create a safer digital India? Loads and loads of questions in every person's mind when we talk about digital India, the dangers involved with cyber security. Over the next 60 minutes, we'll try and get some answers to what these problems are and how they can be tackled and how India along with the world can move forward in the digital age. बिल्कुल इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश की गई है, पूरा प्रयास किया गया है। स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई है। आईटी हार्डवेयर में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा को लेकर के देश में एक मजबूत तंत्र बनाया गया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर को हम मना रहे हैं और अक्टूबर महीने में ये जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मनाया जा रहा है, इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और हम अपने खास मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा दें। अनिल हमारे साथ में जी। Well, we've got an eminent panel of three guests joining us this afternoon, all the three joining us together. First of all, let me introduce Lieutenant General Rajesh Pant, who's retired, who's the National Cyber Security Coordinator for the Government of India. Also welcoming Savita Utreja, who's a scientist with the Ministry of Electronics and Information Technology. And finally, Subimal Bhattacharya, Cyber Security Analyst, joining us this afternoon on our program on Atmanirbhar Bharat, where we focus especially on cyber security. Well, coming first to you, Lieutenant General Rajesh Pant, looking at this particular problem of cyber security and all that we are looking at, having said that, in this COVID times, do you feel where more and more people are moving towards online modes of payment and transactions, do the dangers of this particular cyber threats increase manifold? Yeah, firstly, thank you, Anil and Nikhil, for having me here, and good afternoon to all the viewers of Doordarshan on a very auspicious day where we are celebrating Gandhi Jayanti and also Lal Bahadur Shastri Jayanti. And you spoke about the Cyber Security Awareness Month, the Cyber Suraksha Jagrukta Ma, as it is called. This is held in the month of October. So let me just update the viewers as to why we are having this discussion today, is that globally, the month of October is regarded as the Cyber Security Awareness Month. Right. And this whole story started around 2004 in USA, in the Department of Homeland Security, and now we've also joined the global alliances and celebrate it every year. And this year is especially different because of the pandemic. Till last year, when people used to ask me about online and the real life living, I used to tell them spend less time on online and look at the trees around you, go for treks, concentrate on real life. But this year I can't say that, क्योंकि इस साल जो है कि हमें फोर्स किया जा रहा है, टेलीवर्किंग हमने घर से करनी है, एजुकेशन हमारी ऑनलाइन हो गई है, शॉपिंग हम घर से कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे हो गए। तो इस साल जो है साइबर सिक्योरिटी का महत्व बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने लाल किले से 15 अगस्त को you would have heard the Prime Minister making a statement about the importance of cyber security. First time in the history of India, independent India, that cyber security was mentioned from the Red Fort, and he spoke about its impact on society and on economy, etc. So ये इसकी importance है, और ये पूरे महीने में
कल से ही शुरू हो गया है। मैं एफएम रेडियो में सुन रहा था, डीसीपी साइबर क्राइम दिल्ली वाले भी बोल रहे थे, और टीवी में एड्स आने लग गए हैं। एंड आई मस्ट थैंक दूरदर्शन कि आपने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस टाइमली मौके में, क्योंकि हमें इसमें बहुत काम करना है। ये होल ऑफ नेशन अप्रोच है, ये एक दो आदमी या मेरे डिपार्टमेंट या किसी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी जो है ये हर एक इंडिविजुअल, हर एक बिजनेस, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर एक एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी हम देश को बचा सकते हैं। क्योंकि एक मैं छोटा सा उदाहरण लूंगा बिफोर आई फिनिश, कि एक एग्जांपल लीजिए कि एक फिशिंग ईमेल किसी एक इंडिविजुअल को आई, उसने क्लिक कर दिया, वो मैलवेयर उसके कंप्यूटर में आ गया, एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड्स टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, हिज एंटरप्राइज, और फिर धीरे धीरे जो ये साइबर हैकर्स होते हैं ये एक अपनी एस्केलेट करते हैं प्रिविलेजेस, ताकि ये ऐसे कंप्यूटर तक पहुंच जाए जिसके पास बहुत सारा डेटा है, और फिर वो एक साइबर अटैक करेगा और वो डेटा को बोलेगा आप इतने पैसे दीजिए। तो एक आदमी की गलती से पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हर एक आदमी को साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयर होना है और वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, और इसीलिए इस पर्टिकुलर मंथ में हम लोग ये जागरूकता ला रहे हैं लोगों में कि साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक साइबर हाइजीन के लेसन्स हैं उसको आप प्लीज फॉलो करिए। थैंक यू। बिल्कुल, जो साइबर हाइजीन के लेसन्स हैं उनको फॉलो करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना है। और अगर बात कही जाए, सविता उत्रेजा जी आपके पास आएंगे कि जब हम साइबर सुरक्षा को लेकर के या इस मामले में इंटरनेट यूसेज को लेकर के जब हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार विकास के नए मानक हर क्षेत्र में तय किए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को लेकर के चिंताएं जरूर बढ़ती हैं। कितना मजबूत है हमारा तंत्र, और पिछले कुछ दिनों में ये कहा जाए तो किस तरह से हमने इसको आत्मनिर्भर होने की कोशिश की है, किस तरह से इसमें स्वदेशीकरण को लेकर के आए हैं? साइबर सुरक्षा जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसपे कि हमें बहुत काम करना है, क्योंकि कोविड के टाइम में हमारी डिजिटल पेमेंट्स हैव इंक्रीज्ड सो मच, सो थेफ्ट्स ड्यू टू डिजिटल पेमेंट्स, फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, मतलब कि उनकी जो निजी जानकारी है, जैसे उनका ईमेल है, उनका पासवर्ड है, वो सब चोरी हो जाता है विदाउट देयर इंफॉर्मेशन, और उसको फेक प्रोफाइल यूज करा जाता है बनाने के लिए। तो ये थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्टेप्स लिए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रहा है कि सब में ये जागरूकता पैदा की जा सके। तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें कि लगातार क्लासेस होती है, लगातार सेशंस हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और एक साइट है infosecawareness.in, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स के लिए क्या क्या करना चाहिए उन्हें इस टाइम में वो है, जैसे कि सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वुमेन के लिए, फैमिली के लिए, टीचर के लिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, कि वो क्या क्या एक्शन ले और क्या क्या प्रिकॉशंस ले, उस तरह का सारी उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। और वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं है, वो और भी भाषाओं में है, वो मल्टीलिंगुअल है। और फिर हम तरह तरह के कंपटीशन भी अरेंज करते हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है CDAC जो इस एरिया में बहुत काम कर रही है, और इस पूरे मंथ में काफी कॉम्पिटिशन्स और काफी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी थ्रू पोर्टल। और हमारा एक साइट है साइबर स्वच्छता केंद्र.gov.in, जिससे कि यूजर्स को अवेयर कराया जाता है कि उनके अगर मोबाइल फोन में मैलिशियस प्रोग्राम आ गया है तो वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम से मैलिशियस मैलवेयर को हटा सकते हैं। और हमारा जो है एक और एजेंसी भी है, सर्टेन भी है, जिसमें कि आप इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। और साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पोर्टल बनाया है, cybercrime.gov.in. Coming now to Mr. Bhattacharya. Bhattacharya, purely looking at numbers, when you purely do number crunching when it comes to the penetration of internet in India, we've got 730 million internet users in India. 75% new users come from rural areas. 175 million online shoppers that we're talking about. How internet has spread manifold. How do you see the evolution of cyber security? We all started when we were in school, viruses, we talked about antiviruses, firewalls. Today we are talking about magnanimous proportions when it comes to cyber threats. So how have things changed, and how is India gearing up for meeting those challenges? Thank you so much, Anil, for mentioning your point.
Let me tell you that, as General Pant has mentioned the significance of October, but there's another aspect also in which this October is significant this year. This is the 20 years of the Information Technology Act in India that was passed on 17th October in 2000. And, linking it to the question that you asked me, that even that time when the act was brought in, there were considerations around cybersecurity in some of the provisions that were brought in there. So what I want to say is that this is a year when we have 20 years of the IT Act, where we have the 25 years of public internet in India. We have come to a milestone point where we can look back and see what all we have done. Now, what all we have done, we have always lived up to the challenges of the time. Okay. And challenge of cybersecurity right from day one has been there, and we have calibrated all our responses to that, and the whole of the management around the cybersecurity ecosystem today is in very capable hands. General Pant has been one of the persons in the forefront even in his army days, and within the MeitY, as scientists like Dr. Savita, they all hold on a lot of the aspects that keep everything flowing together, despite a point of time when we have increased awareness requirement, despite the attempts by some of our not so friendly neighbors regularly in trying to attack our critical infrastructure. We have always remained on top. We have always taken the right step. We have, I would say, pushed the spirit of being able to put across to enterprises as well as to individuals to build a culture of cyber security. तो जहां तक ये 20 साल की सवाल है, हमारे बीच में एक जागरूकता आई, और इसी महीना जब ये जागरूकता महीना भी मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि और बहुत लोग इसमें आ गए हैं। जैसे आपने आंकड़ा दिया था 73 करोड़ जो इस देश में इस वक्त इंटरनेट में जुड़े हुए हैं, और हमारे और भी पकड़ लीजिए मोर देन 50-60 करोड़ में हमें जाना है आगे। तो इसके लिए जो मार्च है ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जिसमें भी साइबर सिक्योरिटी का फोकस दिया जा रहा है, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी जैसे जनरल पंत साहब ने जिक्र किया था कि 15 अगस्त ने साइबर सिक्योरिटी मेंशन की, लेकिन उन्होंने पहले भी ये बात बताया कि हमारा देश को एक विश्व की साइबर सिक्योरिटी की हब की तरह माना जाए। तो हमारे जो कैपेबिलिटीज है सॉफ्ट स्किल्स में, हार्डवेयर में, और आज अब देखिए जितने भी विषयों पर हैकाथन हो रहा है उसमें कितने नौजवान उभरते आ रहे हैं जो इस सिलसिले में बहुत कुछ आगे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको एक नेशनल मूवमेंट की तरह और इसको आत्मनिर्भरता की तरफ की ध्यान से जिस तरीका से प्रयास हो रहा है पूरे इकोसिस्टम में, हम सुरक्षित रहने की प्रयास में हम काफी कामयाब है, और ये एक बहुत बड़ी डायनेमिक फील्ड है। इसमें हर वक्त इसके साथ थ्रेट्स के साथ इवॉल्व होने पड़ते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम इवॉल्व होने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस चुनौती को हमेशा आगे लेते रहेंगे और हमारी कामयाबी ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल। जनरल पंत, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जब बात ये होती है कि हमने साइबर सुरक्षा को लेकर के एक मजबूत तंत्र बनाया है, सारी बातें हैं, आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन जब बात साइबर फ्रॉड्स की अगर करने लग जाए, जब हम बैंकिंग फ्रॉड्स की बात करने लग जाते हैं, तो जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, एक बार कहीं ना कहीं जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं वो एक मन में कहीं ना कहीं भय आ जाता है। जब तक फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं हो जाएगी तब तक इस मामले में आगे शायद नहीं बढ़ा जा सकता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से इस तंत्र को और मजबूत बनाया जा रहा है, और खास साथ ही साथ ये भी कैसे कोशिश की जा रही है कि जो आम लोग हैं वो इसको लेकर के एक निश्चिंतता का भाव उनके मन में आ सके। निखिल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा है और बैंक्स को अफेक्ट कर रहा है और नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल वाला केस लेते हैं। जो हम लोग आजकल देख रहे हैं वो ज्यादातर केस ऐसे आ रहे हैं, या तो वॉइस से जो फिशिंग हो रही है कि आपको एक टेलीफोन कॉल आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपका KYC एक्सपायर हो गया है, बस ₹1 जमा कराइए और इस लिंक में क्लिक करिए और बाकी आपका हम एक्टिवेट कर देंगे। जब वो उस लिंक में क्लिक करता है तो फिर उसके फोन में मैलवेयर आ जाता है, उसके फोन की या तो इमेज चली जाती है दूसरे के पास, या जो वो टाइप करता है वो दूसरे को पता चल जाता है, और वो ₹1 जमा कराने के चक्कर में
वो अपना OTP और बैंक का सब डिटेल देता है और उसके बाद फिर वो बातों में लगाए रखता है दूसरा आदमी, और इतनी देर में वो उसके पैसे निकाल लेता है। तो एक तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि प्लीज 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 डू नॉट क्लिक आइदर ऑन अ सस्पिशियस मेल और एनी सच फोन कॉल दैट कम्स टू यू। उसकी शुरुआत वही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये है। जब हम ऊपर जाते हैं थोड़े बड़े बड़े क्राइम जो ये आजकल माफिया वाले और स्टेट बैक्ड भी हो रहा है बैंक्स के अगेंस्ट इस तरह का, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेशनल सिंडिकेट्स हैं इसमें, और जो अटैक्स आते हैं उनकी जो ट्रेसेबिलिटी हम लोग कहते हैं कि एट्रीब्यूशन की किसने अटैक किया, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बड़े चालाक हो गए हैं आजकल। ये आते हैं 4-5 हॉप्स जो हम लोग बोलते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट जैसे आपको पता है एक शॉर्ट फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, मतलब कि ये स्पाइडर की वेब जैसा पूरी दुनिया में बैठा हुआ। तो ये डायरेक्टली आपके पास नहीं आते हैं, ये आते हैं यहाँ से गए कोई दूसरे देश, वहाँ A से गए B से गए C और C से आए आपके देश में और फिर उन्होंने कुछ अटैक किया है। अच्छा, जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें लास्ट जहाँ से वो आया उसका डिटेल मिलता है। अब हम दूसरे देशों से पूछते हैं कि भाई जरा हमें डिटेल दे दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा आजकल इंटरनेशनल ट्रेसेबिलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, उसके तहत थोड़ा एक जुडिशियल प्रोसेस है जो लेटर ऑफ रोगेटरी कहता है, वहाँ थोड़ी अड़चने आ रही हैं इनको ट्रेस करने में, इसलिए इस चीज का ये फायदा उठाते हैं। तो इसको रोकने के लिए बेसिकली ये जो अभी कोविड ने एक नया प्रॉब्लम शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था कि जितने ये एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री होते थे ये बड़ी अच्छी एक बाहर से अपनी फायरवॉल लगा लेते थे, उस फायरवॉल के अंदर सब उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करते थे, एंड दे हैड अ डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच वेयर दे हैड एंटी APT, IDS, firewall, etc. But today, because of the work from home environment, now the employees are working from their homes. True. अब वो एंटरप्राइज जो आपने अपने ऑफिस में बनाई थी वो कैसे उसको वहां प्रोटेक्ट करेगी? इसलिए सडनली लास्ट 3-4 मंथ्स में एक नया प्रॉब्लम आया है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए कि एक नया आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाए जिसमें जो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करे। और वो उसमें नई नई चीजें आ गई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, क्लाउड सर्विसेज हैं। तो ये एक रिसेंट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग टैकल कर रहे हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। Okay, Savita Uttreja ji, looking at this particular problem that just Rajesh Pant just raised, especially when we are working from home in this environment, is there now an added headache when it comes to creating those kind of security checks that you need to put in place? How can you do it? In an organization it's possible, but how can you put it when you're working from home, when every individual is working from home? Does the challenge increase manyfold now when you're looking at cyber breaches and cyber security threats? Yes, it has definitely increased during this time. और क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की फैसिलिटी हम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि जो हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंस इन डेप्थ, वो हम उनको घर पे नहीं दे सकते, तो हम उन्हें VPN एक्सेस देते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें कि उनको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड बेसिस पे ही वो एक्सेस नहीं करते हैं, उसमें उनका OTP भी रहता है, वो उनके मोबाइल पे जाता है, जब वो मिलता है तभी वो हमारे नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकते हैं। बट उस तरह के इश्यूज बढ़ रहे हैं और सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को, VPN इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिनेटली उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, और उसके लिए हम एडवाइजरीज टाइम टू टाइम देते रहते हैं। फिर मोर ओवर अब ऑफिस मीटिंग्स भी जो है वो भी वर्चुअल मीडिया पे होने लगी हैं, तो उसके लिए पहले तो लोग काफी जूम भी यूज कर रहे थे, और भी काफी प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते हैं, गूगल मीट यूज करते हैं, तो उसमें भी हम एडवाइजरी देते हैं कि जो भी वो यूज करें, they should use the latest version and with all the secure features installed in it. So that is it. उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। फिर आजकल बच्चे भी जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, so that is also becoming a issue. So challenges have increased, but we are coping up with it, and we are issuing different advisories time to time on different issues like work from home. We are giving different advisory for VPN access. We are giving for identity theft. We are giving. So these kind of advisories are being released by government. बिल्कुल
सुबिमल भट्टाचार्य जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जब बात इस बात की होती है कि इस क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है, जब स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, किस तरह से इस तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है? इस तमाम प्रतियोगिताओं के जरिए सरकार आगे आ रही है, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज हो या मोबाइल ऐप चैलेंज हो, किस तरह से लोगों को जोड़ने की और कोशिश की जा रही है ताकि जब इन चीजों का स्वदेशीकरण हो सकेगा तो शायद जो सुरक्षा है वो करना भी आसान हो सकेगा। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया प्रयास था। अभी कुछ ही हफ्ते पहले आपने जैसे दिखा था कि पुरस्कार दिया गया है एप्स के, और ये जितने सारे 2-3 एप्स को शायद पुरस्कार मिलता है, लेकिन इसके पीछे और 50-60 ऐसे एप्स भी होते हैं जिनकी डिमांड उतनी है और जिसका काम साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में है। तो मुझे जो लगता है, जैसे अब कुछ लोग ये भी दौड़ाए कि कोई चाइनीज ऐप आप निकाल देते हैं सिस्टम से तो इससे आपका मार्केट खुल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। हमारी जो एप्स स्वदेशी एप्स भी बन रहा है उसका भी एक ऑटोमेटिकली मार्केट जनरेशन हो रहा है, और मार्केट जनरेशन इसीलिए होता है क्योंकि इसकी एफिकेसी क्या होता है, इसकी एफिकेसी उसी के ऊपर होता है कि आपने किस तरीका से प्रॉब्लम को ग्रेस्प किया। और जहां तक इस देश में रिसोर्सेस की सवाल है, ह्यूमन रिसोर्सेस की, जो इंजीनियर्स आते हैं, छोड़िए इंजीनियर, छोटे छोटे जगह से जो हैकर्स भी निकाल के आए हैं, मेरे तो इतने सालों की एक्सपीरियंस है कि 12th पास की लड़के भी उतने ही काबिल होते हैं इस कोडिंग में। तो ऐसे हमारे बहुत सारे नौजवान इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड मोटिवेटेड यंग जनरेशन इसमें लगे हुए हैं, इसलिए हम आगे ऐसे ऐप ला रहे हैं। और जहां तक साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन की बात है, जहां तक एक ओरिएंटेशन भी स्कूलों से होने की बात है, सरकार की जो प्रयास है वो ठीक है। मुझे लगता है कि उसको और थोड़ा सा मजबूत किया जा सकता है कि कोई मिशन मोड की बेसिस में अगर स्कूलों में और क्लास 12 लेवल तक अगर एक जागरूकता और एक मिशन मोड की तरफ से दिया जाए, और बहुत कुछ हमें दिखाई देगा। हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आपने शुरुआत में प्राइवेसी की बात दोहराए थे, अब सिक्योरिटी अगर इस देश में नहीं होते डाटा की, तो इतने सारे जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो अपनी प्रोसेसिंग के लिए बीपीओ में यहाँ दिए, कैसे दिए गया? ये तो कोई स्पेसिफिक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, बाय इवन प्रोविजन विद इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अंडर 43 सेक्शन 43 and all, everyone relied on our credibility. We have shown to the world that we have processes in place, we have an ethical infrastructure in place, and that is where the young generation need to be motivated more, because this whole pandemic has not only opened up an e-commerce ecosystem to a much larger base, but the online education, office and everything, and it has definitely taken the base far much higher up. So that is where we need more people. अगर आप देखें तो 2003 में जो एक 2013 में एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बताया गया, तो उसमें 5 लाख इंजीनियर्स की बताए गए थे। मुझे तो लगता है अभी 20-25 लाख की डिमांड किसी भी समय रहते हैं जो इस फील्ड में काम करने के। तो हमें इसी तरीका से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन काम में प्रयास और करना पड़ेगा, और सरकार की रवैया इस दिशा में बिल्कुल ठीक है। Okay, now coming to Lieutenant General Rajesh Pant, now looking at everything starting from home, even today like my mobile would be accessed by my children because they are all doing online classes. Our laptops, our desktops are all used by children. Does that increase manifold the dangers of cyber phishing? And that's not all, somewhere deep down even children are feeling the heat because children are using the laptops more. So will children now be the new targets for cyber hacking or cyber phishing? Well, I believe we've lost our link with Lieutenant General Rajesh Pant. Yeah. Well, we believe we've not able to, well, he's not able to hear that. Let's go to Savita Utreja, who's also there with us. Savita ji, when you look at this particular problem, especially when as parents, our mobiles, our desktops, our laptops are also accessed by our children, because, we wouldn't,
each parent wouldn't be able to afford, you know, a personal laptop or a phone for every kid who's doing studies from home or online. Does that increase, you know, the pressure of, you know, cyber phishing or cyber hacking, especially on our phones, our desktops, because, you know, we would also be carrying sensitive information that could be used by many hackers? Yes, definitely these kind of problems are going to increase, and then along with this, we should observe some kind of cyber hygiene when we are on social media. That what should be done, what should not be done. We should not be keeping on posting the messages which are not relevant to others, and we need to observe cyber ethics. Ethics need to be observed. What should be the rules? We should be not sharing unnecessary photos, and we should not be making friends with the people whom we don't know. We should check for their profiles. We should check for their friend list, and then we can see whether they are actually those people, which they are not fake people, because nowadays there are problem of fake profiles also. True, agreed. So children are becoming actually target for all those kind of things. There is cyberbullying also increasing because of too much time on social media. So there are guidelines for both parents as well as students as well as children, which are also there on, I can tell you the website, which is a very good website, and all those kind of details are there, infosecawareness.in. So in which we are telling what kind of social media behavior should be there when you are online. So that is really important, and parents also need to see that what kind of sites are being accessed by children, what kind of screen time is given, and so that is really important, because it is only awareness which can protect all of us. So that's what we do. Okay, awareness. That's going to be the mantra to survive in this testing times. But now coming back to Lieutenant General Rajesh Pant, I believe we've patched him back. Thank you for joining us once again. But looking at this pertinent problem, do you somewhere feel that, you know, this particular subject of cyber security, cyber hacking, you know, especially kids need to be made aware, because they are the ones who are, you know, at the nascent stage of exposure when it comes to this, and, you know, they could be targeted big time, as Savita ji mentioned. So do you feel that, you know, it's high time that we need to develop some kind of courseware that, you know, kids are made aware of this right at a young age? Because kids these days, even a 2-year-old does understand, or the parents do hand a mobile or a laptop to them to listen to music, to watch videos, even when they don't understand anything. So, you know, that easily accessible module of infotainment is also, you know, very much a serious threat. Yeah, Anil, you're very right. And when you said 2-year-old, I was reminded of my grandson with whom I do video calls. I was reminded of my nephew. So it's very important. But before that, let me come to the question where we got cut off earlier, and we were talking of a mobile phone and the endpoint, etc. Now, you see, everything starts from there. Because the network security is taken care of by the network service providers and the internet service providers, and they're doing a good job, let me tell you. But the endpoint security, the mobile phone, this is where most of the threats are emanating from. So we did an analysis recently, and we found that there are 15 different attack vectors from where an attack can take place in a mobile phone. Okay. So it's not only the apps that you download from the Play Store, etc. There are some bundled apps, you know, the pre-installed apps which you cannot delete. Yes. That is a threat. The operating system that you're using is a threat. The processor, the hardware, the memory, the connections that are made through Wi-Fi and Bluetooth. You know, the viruses, some of them come through Bluetooth. You're going and walking in a mall or something, and somebody else just sends a virus to you through Bluetooth. So like that, there are 15 different. Okay. So the endpoint and the mobile device is very important. Okay. And please continue. जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ. नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसके लिए हमने अभी 2-3 चीजें हो रही हैं. एक तो Subirmal mentioned the policy of 2013. So that is from the government point of view, that is our base policy today, जिसमें हमने बोला था कि हम एक सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस चाहते हैं देश में, और उसी की पॉलिसी की वजह से मेरा अपॉइंटमेंट बना है. क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, NCIIPC,
ये साइबर क्राइम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, I4C, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से बड़े काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए। अभी आगे जाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने उस दिन अनाउंस किया है 15 अगस्त से, ये हमने नई रणनीति बनाई है जी। और जितनी भी बातें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो आप देखेंगे जैसे ही कैबिनेट इसको अप्रूव करता है, चाहे वो इकोसिस्टम हो, चाहे गवर्नेंस हो और सिक्योर करना हो, स्ट्रेंथन हो, ये सारी चीजें अभी नई रणनीति में आने वाली हैं जो कि आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी आएंगी। जी बिल्कुल, ये जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 जिसकी बात आप जनरल पंत कर रहे हैं, इसके विषय में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। और इसके साथ ही साथ जो एक और थ्रेट जब बात होती है, जो तमाम विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीयों का या दूसरे नागरिकों का, अभी एक खबर आई थी जिसमें लाखों ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी, भारतीय नागरिकों का निजी डेटा चुराने का आरोप एक चीनी कंपनी पर लगा था। इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे जो निजी सूचनाएं हैं वो दूसरों तक ना पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? सबसे पहले आपने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बारे में पूछा था, वो नई वाली जो है, तो उसका बेसिकली रीजन इज दैट वी हैड अ पॉलिसी इन 2013 और पिछले 7 सालों में आप देखिए पूरा साइबर सिक्योरिटी का अटैक सरफेस चेंज हो गया है। ये रैंसमवेयर पहले नहीं था, ये क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो जैकिंग पहले नहीं था, IoT डिवाइसेस पहले नहीं थे और नए नए टेक्निक्स हो गए हैं इसके साइबर सिक्योरिटी अटैक के, तो बहुत बदलाव आया ये पूरे इकोसिस्टम। तो ये सब टैकल करने के लिए एक हमें नई रणनीति की जरूरत थी। प्लस नंबर्स हमारे कितने हो गए, आपने शुरू में बोला ये कितने साथ, ऑलमोस्ट 730 million internet users you said in the beginning. So a new strategy was required, which is why this new strategy is being released shortly. And as I said, this will cater for a new framework for governance. और इसमें हम सारी चीजें टैकल कर रहे हैं, चाहे आपका ऑडिट का फ्रेमवर्क हो जिसके बारे में अभी हमने बात करी नहीं है कि ये कैसे हम इंश्योर करें, जितनी हम बातें बोल रहे हैं जो हम चाहते हैं कि ये सेफ्टी होनी चाहिए इंडिविजुअल्स में, एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में, कैसे इंश्योर करें। उसका एक तरीका है कि साइबर ऑडिट, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज का एक साइबर ऑडिट होता है। तो वो साइबर ऑडिट के लिए उसमें भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि वो एंटरप्राइजेस कहती हैं कि क्योंकि वो पैसा देके होता है तो कहती है मिनिमम करा लो और बोल दो कि साइबर ऑडिट हो गया। तो उसको ओवरकम करने के लिए अभी हमने क्या किया है, एक मिनिमम बेसलाइन रिक्वायरमेंट कर लिया कि अगर साइबर ऑडिट होगा तो दीज आर द मिनिमम ticks that you have to get it done, and that is how we are trying to force people to ensure that cyber security is maintained. Okay. Finally, then you asked about data security. Data security, as I said, is linked to what Savita also said about what you are putting in the social media. आप अपने घर के जितने फोटो एल्बम है वो तो आपने घर के बाहर रख दिए हैं लोगों को देखने के लिए, and then if someone picks it up and sees it, then that is how we don't realize that how that data is being sold. Okay. एक चीज सब लोगों ने याद रखनी है कि इफ देयर इज एनीथिंग फ्री ऑन द इंटरनेट देन यू आर द प्रोडक्ट, फिर आपको बेचा जा रहा है और आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपका डेटा इकट्ठा करके वो लोग कैसे पैसे बना रहे हैं। वो एडवर्टाइजिंग की कंपनीज को दे रहे हैं कि इसकी ये पसंद है, ये चीज लेता है, कोई मे बी कार मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग कि ये चीज ढूंढ रहा है। तो विदाउट यू नोइंग इट योर डेटा हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, व्हिच इज व्हाई माय फाइनल पॉइंट इज दैट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल which is under the committee by Ms. Meenakshi Lekhi, Joint Parliamentary Committee उसको देख रही है और we are all hoping कि winter session of the Parliament में इंट्रोड्यूस किया जाए और पास हो जाए। उससे फिर हमारी जागरूकता और बढ़ेगी कि पर्सनल डेटा क्या होता है, व्हाट इज PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या चीज देश के अंदर रहनी चाहिए, क्या चीज बाहर जा सकती है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर भी जरूरी है। अगर आप विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन तो जानी है बाहर। तो ये हमें एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जब बनेगी, ये सब चीजें उसमें आएंगी कि डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है, डेटा प्रोसेसर क्या होता है, डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर हमारी जागरूकता इसमें बहुत बढ़ने वाली है। तो ये सब आगे बहुत इंपॉर्टेंट things are going to happen in the near future. Okay, many steps being taken to take care of the privacy, especially in this age of cyber security. Coming back to Savita, Savita Utrujali, looking at the way things are, financial organizations are the biggest that get hit when it comes to cyber security. In this COVID times, have you heard about stories about even healthcare sectors getting hit by cyber?
attacks and cyber attacks? Yes, actually financial sector and healthcare sectors, Okay. they are affected badly during this time because healthcare care sector, in the case of like what kind of actions are being taken to take care of the COVID patients and what are the initiatives, what are the vaccines being done. So there are fake news spreading related to that COVID, and what are the like donation funds are created. So related to that, there are phishing news are there. So with respect to that, there are a lot of threats which have increased, which are basically related to the phishing or stealing of the information also is there. And it is also there in the finance sector as well as in the health sector. जी सुबिमल भट्टाचार्य जी, किस तरह से जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशीकरण किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जाए और किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए, जब बात होती है कि भाई साइबर सिक्योरिटी की, तब बात ये भी होती है कि जो जैसे मोबाइल ऐप्स हैं या जो कंपनियां हैं जिनके सर्वर विदेशों में हैं, उन पर ज़्यादा रिलाई ना किया जाए। किस तरह से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि जो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, जो हमारे देश में जो इनोवेशंस हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। और ये जो जागरूकता की बात हो रही है, ये सिर्फ केवल अखबारों तक ही शायद सीमित ना रहे या मीडिया डिस्कशंस तक ना आए, बल्कि ये जन जन तक एक एक व्यक्ति इसको समझ सके, जान सके। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आज जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है और साथ में जितने संस्थाएं या इवन कॉरपोरेशंस भी जिसको एक एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल सॉल्यूशंस, और इसको कैसे लोकली सर्वर में स्टोर किया जाए। हम एक शब्द है डाटा लोकलाइजेशन, और डाटा लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई, और हमारी सरकार की तरफ से भी विदेश में जहां तक साइबर डिप्लोमेसी की बात होती है या मल्टीलैटरल मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशंस में जब आती थी, हमने डाटा लोकलाइजेशन को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हमेशा फ्लैग किया गया। और जहां जैसे जनपद साहब ने मेंशन किया, जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आएगा उसमें डाटा लोकलाइजेशन की भी प्रोविजंस है। अब बात है कि कौन सी डाटा बाहर जाएगी, अगर जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, और कौन सी डाटा देश के बाहर जा ही नहीं सकते, यहाँ रहना है। तो ये सारे एक स्टेप वाइज एक्टिविटीज है। कुछ प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और एक इकोसिस्टम हम देश के अंदर बनाएंगे और उसको देश में इस्तेमाल करेंगे। कुछ हम बाहर से भी लाएंगे तो उसको कैसा इस्तेमाल होगा। अगर आज जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, हर प्रोडक्ट्स सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसका एक चेकिंग होती है, उसमें कोई बग्स नहीं है, उसके लिए एक मैं कहता हूं बड़ी स्ट्रिक्ट तरीका से डिफेंस PSUs या हर ऐसे संस्थाओं में आज काम हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम ये सारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में और मजबूती की तरह माने। और जैसे जनपद साहब ने अभी भी मेंशन किया था कि ऑडिट की बात एक बेसलाइन होना है, उतना होना ही पड़ेगा। तो हमें इसको बड़ा रिलीजियसली इसको एक मैं कहूंगा कि स्ट्रिक्ट तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा कि कुछ एक्टिविटीज इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं हो सकते। ओके जी। तो मेरी बात है कि पॉलिसी लेवल में काम, प्रैक्टिस लेवल में काम, ये सारे होना चाहिए। और एक शब्द मैं और भी बोलूंगा, आपने थोड़े पहले बच्चों के बारे में बात की, तो चाइल्ड और चिल्ड्रन की जो एक वल्नरेबिलिटी होती है इंटरनेट में, अगर आप गौर करें तो दिसंबर महीना में उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी ने एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ही हैड अपॉइंटेड इनफॉर्मल कमिटी टू लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन कैन बी सेफ ऑन द इंटरनेट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक हिस्सा होता है, लेकिन ओवरऑल जो चिल्ड्रन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जैसे आपने दोहराया था कि अगर मोबाइल ले जाते बच्चों तो कैसे वो वल्नरेबल हो सकता है, या ये भी अपने आप कुछ क्राइम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज ए क्राइम। तो ये सारे चीज के ऊपर जो 43 रिकमेंडेशंस आए थे उस कमिटी से, मुझे लगता है ये सारे चीज भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे 43 में मैक्सिमम ऑफ दिस प्रोविजंस आर वेरी प्रैक्टिकल, और ये ऐसा प्रैक्टिसेस जो है उसको एक हैबिट की तरह करना चाहिए। जैसे हम
सिगरेट के पैकेट में एक सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखते हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानते वो भी जानते हैं कि एक वार्निंग आ रहा है। तो हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी एक वार्निंग की तरह हर तरीका, एक वार्निंग पॉजिटिव एंगल से, एक नेगेटिव एंगल से हमेशा देना चाहिए कि आपको कुछ कुछ बेसिक, मैडम ने जैसे बताई थी साइबर हाइजीन, बेसिक साइबर हाइजीन का प्रैक्टिस हर बच्चों में होना चाहिए, पेरेंट्स में होना चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। एडवाइजरी से एक लेवल तक होते, लेकिन जो प्रैक्टिस है उसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, उनका एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। आज जो एक डिजिटल रिलेशनशिप पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में हो रहा है, उसको बड़ा केयरफुली पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक, किस लेवल तक आप मैं भी देखता रहा कि छोटे छोटे बच्चों आज ऑनलाइन क्लासेस करते रहे हो, हमसे भी एक्सपर्ट होते हैं अपनी हैंड मूवमेंट्स करने के लिए मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइसेस में। तो अब वो कहीं भी जा सकता है, तो आपने कितने सीमित तरीका से इसको इंटरनेट एक्सेस देते हैं, आप किस तरीके के पेरेंटल लॉक लगाते हैं, ये सारे एक सोसाइटल रोल भी होते हैं। सरकार के बाहर एक समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि इसमें जोड़ने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो आज आप बता रहे हैं, जो एक इकोसिस्टम हम प्रयास कर रहा है, एक जो समाज या जो हमारे जो कल्चर की बात है, ये कल्चर में हमारा एक डिजिटल इम्बाइबेशन सबके हो चुके हैं, हम सब आज डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं। तो उसमें फिजिकल या रियल वर्ल्ड में जो अपने कुछ बिहेवियर्स या कुछ हम प्रैक्टिसेस रखते हैं, उसमें डिजिटल बिहेवियर प्रैक्टिसेस भी होना चाहिए, जिसमें कुछ कुछ हिस्से में हमें देखना ही पड़ेगा कि लोकली इनोवेटेड प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को डालना पड़ेगा, और कुछ कुछ हिस्से में हम कैसे बाहर से, हमारे देश में अंग्रेजी का बहुत प्रभाव अभी भी है। और अगर आप देखें जितने सारे अमेरिकन बड़े बड़े टेक जायंट्स जितने आप बोलते हैं, इनकी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आज हमारे देश से होते हैं। ये गफाम जो बोलते हैं, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारे की एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस इस देश में है। हम compared to many other countries, we have really done very well in terms of how we manage them, how we regulate them, and how they have gone into our market. Okay. But there is also a larger market that local innovative products at the last mile can happen. Okay. And that is where should be the focus for all of us, to say that not only it improves in our societal and cultural performances, but also improves our economic footprints in this particular area. That is when you will realize what the Prime Minister said, making India a cybersecurity hub. Okay. Taking that forward, Lieutenant General Rajesh Panji, looking at the way things stand, we are world over, we are trying to understand, a possible vaccine, a possible cure for this particular COVID-19. Many theories being floated about it. Do you feel we are talking about nuclear wars, chemical wars, all these things were spoken about? Do you feel now we are looking at, a cyber warfare that's going to be the big threat? And considering the size and shape of India as a country, how difficult or how big are the challenges, in fighting against this particular cyber warfare? See, everyone is aware that there are 5 domains of warfare now: land, sea, air, space, and cyber. So all nations across the world have to be prepared to fight in these 5 domains. So the other nations are also prepared, and we are also prepared. And like you compare the capabilities of the Army, Navy, Air Force, etc. Similarly, there is a capability comparison in the cyber domain. Now here is where India has an advantage, because cyber warfare is basically fought through software. And historically, Indians, as you are aware, from that Y2K time, we have made a mark of ourselves as being, the top players in the software domain. So this is where we have an edge, that with the software strength that we have got as a cyber power, we definitely have an edge over the other nations. That is as far as your particular question on the cyber war is concerned. A little bit about the Atmanirbhar, because you had asked Subirmal and he always gives excellent replies. But I just want to add that there is in the field of cyber security, there is a lot of scope in indigenization.
basically there are hardware aspects and there are software aspects. Okay. But the products, cyber security is in two fields. One is the products, the other is the services. Services means you tell somebody else to manage your cyber security. Product is you buy something from him and put that box and that provides you security. Okay. So the product line stretches from the endpoint detection, that is endpoint is wherever your laptop etc. is, and then it goes up the entire chain of the network security, including all the elements of the network, and then it comes to the enterprise and all the defense in depth approaches that we spoke of earlier. Okay. So this field is wide open for indigenization. Lot of products can be created within the country in this, and the solution lies in PPP. Okay. It has to be a public-private partnership. The government cannot do this alone. So that is what I want to highlight to anybody from the industry who's listening to this, that please come and join in and create these products, because from the cyber security point of view, it is very important. Thank you. Okay. जी सविता उत्रेजा जी, जब बात डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की होती है, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स करने वाले लोग हैं उनकी धरपकड़ हो सके, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जो आखिरी आदमी है जिसने फ्रॉड किया है वहाँ तक पहुँचना कई बार मुश्किल हो जाता है। किस तरह से इस मजबूत तंत्र को एक विकसित किया जा सकता है कि ये जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जा सके, किस तरह से जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो बच ना सके, कैसे ये तंत्र विकसित किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? साइबर क्राइम्स फर्स्ट हमें चाहिए कि सिटीजन्स को ये अवेयरनेस है कि अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो वो कहाँ रिपोर्ट कर सकता है। Okay. For that there is a cybercrime.gov.in पोर्टल जिसमें कि वो रिपोर्ट कर सकता है, और एक फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन भी है उसके लिए 155260, जिसपे कि साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई साइबर इंसिडेंट्स होते हैं तो वो हम रिपोर्ट कर सकते हैं सर्टेन पे, जो कि incident@certain.org.in है, और उसके लिए एक हेल्पलाइन है। तो सिटीजन्स को अवेयरनेस होने की जरूरत है कि वो अगर कुछ हो गया है तो वो रिपोर्ट कर पाए, और अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो इमीडिएटली बैंक रिपोर्ट करे, और उसके बाद वो उस पर साइबर सेल पे रिपोर्ट कर सकते हैं और cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफी कुछ स्टेप्स लिए हैं, एंड वी आर डूइंग फर्दर स्टेप्स आल्सो। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर साइबर सिक्योरिटी। Okay. Shubhimal, one quick word before I let you go. We've spoken about many players who could be involved in cyber crimes, many players like cyber criminals, cyber terrorists, cyber espionage, but there is also cyber hacktivism that's happening now. Is that a big threat? People need to be aware of that too? So cyber hacktivism basically, would almost cover the other cyber, activities that you just mentioned about. Basically, you are using, resources to do something inimical to the network's interest or the security of the network. So now, a lot of criminal syndicates, terrorists, even rogue nations, everyone is looking at this in a big way, to basically perform or serve various interests. So I think, we all, when we overall look at cyber security per se, we are looking at even cyber activism, etc. also, and more importantly, you see, cyber from a propaganda right up to destroying a critical information infrastructure, it now goes into all of that. Everyone has its impact, how it can happen. Madam just mentioned about, how the whole, financial ecosystem could work. So for example, and it's a great portal, a lot of people are complaining, they get the reference number, the state governments investigate, but in many cases still now you see that despite a very clear Reserve Bank, a circular of December 2017, many banks don't provide the money back to the consumer even when the consumer meets the requirement of the Reserve Bank. Now these are the few things, also in practice we'll have to solve, because at the end of the day, many of the targets of, a cyber attack are very, very vulnerable people, who have no clue, who would have just been trapped into a call, and, a pensioner losing about 25 lakhs from his
account in 5-6 transactions, he goes to the police station, he goes to the bank, a case is registered. Okay. But after that, the bank doesn't, really respond. I have ample number of cases, and every cases I see like this, it puts pressure that, somewhere we have to be even strong on our own banks and all, so that, particularly the RBI has to be very strong and all, so that people get the redressal. Now, even when you come to your activism part, where you are seeing a lot of people propagating a lot of things that could also have national security implications, I think, we are now getting very strong on that. I think it's very, very important, because cyber has no geographical constraints, so anyone is writing anything and all, and very many things are being completely misrepresented. And in a society that is vulnerable to many of the ills that people exploit or groups exploit, whether it is your communalism or and many other things. Okay. These are the things that we'll have to deal with very strictly from a law and order point of view, and I'm sure most of the state governments today are really doing their work on that. Delhi riots and so many other things, the way investigations are going on, you would see in many cases that is being taken care of. And as far as the critical infrastructure protection is concerned, I think it's going very well according to a plan. So when we look at the new policy that General Pant has mentioned, the national cybersecurity policy that comes of 2020, I think we are going to see a far much more, comprehensive. Okay, loads and loads of steps being taken to protect all that we're talking about privacy here. We're running short of time. This discussion could have carried on for another 30 minutes, but there's a paucity of time, and the producer time and again telling us it's time for us to wind up. I thank the eminent panel, the three guests who joined us this afternoon to discuss the threats of cybersecurity and how the country is gearing up to face it. Thank you and appreciate all three of you for joining us this afternoon on Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जागरूकता जो सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके, समझें न सिर्फ अपने अधिकारों को, बल्कि ये भी जान सके कि किस तरह से साइबर फ्रॉड जो है, साइबर जो क्राइम है, उससे कैसे बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात लिया जा सके, सरकार को भी एक मदद दी जा सके और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको सच बनाया जा सके। Well, one final word before we say goodbye. See, cybersecurity is a pretty dangerous thing. Remember, as the guest said, if anything is available free online, then you are the product. So you need to be careful about it when you venture online, and especially when you try and grab those free coupons, free things that are available online. So you need to be careful, because we are living in an environment where every day everything is a new threat. But if you are cautious, you always can see a better tomorrow. That's all from me and Nikhil. Thank you for watching. Bye-bye. Namaskar.